Good morning, students. I welcome all of you in this virtual class of Office Automation subject. My today's topic is we are going to study about analog computers. We are going to study about digital computers and what are the different types of digital computers which are available. Analog computers are linear combinations of voltage amplitude like current, frequencies, phases instead of digit are called analog computers. So analog computers was used before many years. As in the generations of computers we have done that computers which were very old or when computer was first invented in the world, at that particular time technology was very simple. Computer was only able to do certain task, but as the technological advancement happened, we find that computer also has changed in this 21st century. So analog computer means those type of computers which was based on the most primary technology or the old technology which was used current, frequencies, phases instead of digit, right? So analog computers were not having any digits, but instead of that they uses voltage amplitude like current, frequencies and phases. Analog computers was very difficult to change because it was only was able to do certain types of task. In exam they will ask about different types of computers, right, like digital computers. So short notes will be asked. Now as the technological advancement happened, analog computers are not more used in today's time, but instead of that in today's time we use digital forms of computers. So digital computers, different types of digital computers are mini computers, microcomputer, mainframe computer, and last one is supercomputer. We will do all these computers in detail. First, we will start with mini computer. Mini computer is much larger than microcomputer and also much more expensive. Mini computer was a term evolved in the early 1970s to describe the computers developed by using the microchip. So mini computers were those type of computers which were larger than microcomputers and were also expensive. At the same time, mini computers were generally the time period of mini computer was 1970s. So in our generations of computers we can say that mini computers were generally third generation computers which were using microchip, right? So some mini computers are still in use. Now technological changes have happened, but still in market micro mini computers are being used. Mini computers were replaced by fourth generation computers that use a more advanced version of microprocessor technologies. So now technological advancement has created, it has replaced mini computers with the other forms of computer, other versions of computers with microprocessor technology, right? So in today's time we are having servers, right? It can also store a large amount of information, but again usually not as much as the mainframe computers. So mini computers can store certain amount of informations, but it is compared to mainframe computer it is very less, right? Which organization is using medium and small business and colleges, they use micro computer, right? So mini computers were, in other term you can say it is
third generation computers. Second form of computer is microcomputer. Microcomputer was earlier a commonly used term for personal computer. So in today's time PC, right, desktop PC, they are microcomputers, right. Microcomputer is a computer with a microprocessor as its CPU, right. So CPU, as we have studied, the important part of a computer, which is also called as a heart of computer. Without CPU, a computer cannot run, because it is central processing unit. All the informations which is given to a computers will be processed in CPU, right. So it is central processing unit, main unit of a computer. So we can say microcomputers were, or it has started using microprocessors. As a result of that, we can say the size of computers were also decreased, right. एग्जाम्पल, हमने जो देखा था कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो किससे बने हुए थे. इट वॉज मेड विथ ए वैक्यूम ट्यूब, जो कि एक लार्ज एरिया, लार्ज स्पेस कवर करते थे. मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता गया, उसके बाद ये चेंजेस आया कि कंप्यूटर हैज़ बिकम वेरी कॉम्पैक्ट, राइट. सो व्हेन वी से मिनी कंप्यूटर, जो फर्स्ट कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स जनरली थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे. Micro computers are fourth generation computers which uses, or which has started using microprocessors as their CPU, right. So they were very compact in size, right. Different examples of microcomputers are there, like desktop, laptop, tablet, right, and smartphone. These are examples of microcomputers. The computer that we use are generally microcomputers. Third form of computer are called mainframe computer. Mainframe is a very large and powerful and expensive computer. So mini computers were generally third generation computers. Microcomputers, इन टुडेज टाइम वी आर यूजिंग माइक्रो कंप्यूटर्स. एग्जाम्पल, आज की डेट में हम चाहे स्टूडेंट्स हो तो वो भी अपने असाइनमेंट्स या अपने कॉलेज वर्क प्रोजेक्ट्स के लिए वो लैपटॉप का यूज़ करते हैं. द सेम थिंग द प्रोफेसर्स, द पीपल हु आर वर्किंग इन अ कॉलेज इंस्टीट्यूट्स, दे ऑल्सो यूज माइक्रो कंप्यूटर्स बिकॉज दे ऑल्सो हैव different works on Microsoft Words, Microsoft Excel, right, making different Excel sheets. So it is only possible through microcomputers. Mainframe computer जो है वो जनरली मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स की कंपैरिजन साइज में बहुत ज़्यादा बड़े और पावरफुल होते हैं. एक्सपेंसिव भी है, पावरफुल भी है. It is capable of storing an enormous amount of information and perform many tasks simultaneously. Another important characteristics of mainframe computer is that it is very powerful and expensive. At the same time, it is able to store enormous information. It means it is able to store large informations at the same time. It means different tasks may be able to be completed at the same time, right. Just like we can say one characteristics of a mainframe computer, it is multitasking, right. एक ही कंप्यूटर्स एक साथ कितने काम कर सकता है, राइट. एग्जाम्पल के दो तौर पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में भी काम कर सकते हैं, एक्सेल में भी काम कर सकते हैं, साथ ही साथ हम दूसरे वर्क भी कर सकते हैं कंप्यूटर्स में. ये उनकी खासियत रहती है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर. सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर जनरली एक्सपेंसिव, राइट, बट दे आर एबल टू स्टोर इनोमरस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस, राइट. एट द सेम टाइम्स they can communicate with many users at the same time and are very expensive. So users means different peoples who use computer. So at the same times
we can say a mainframe computer is able to communicate with different users at the same time, right? Speed of mainframe computer is expressed in million instruction per second. तो स्पीड कितनी है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की? तो मिलियन सेकंड, राइट? उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, क्योंकि वो एक साथ काफ़ी यूज़र्स को वो जवाब दे सकता है, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, राइट? दे आर यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग. जनरली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता है, बट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है. बैंक्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए हेल्पफुल रहता है. उसको अगर हम दूसरे सेंस में समझे, देन इट इज़ वेरी इजी दैट वन कंप्यूटर इज़ एबल टू कम्युनिकेट विद लार्ज पीपल एट द सेम टाइम. सो ये एक खासियत है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की. लार्ज बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, बैंक्स एंड यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कोई ऑर्डिनरी पर्सन्स अपने इंडिविजुअल यूज़ के लिए नहीं लेता है, बट इट इज़ अगेन यूज्ड बाय कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर business houses for their use. Now the last form of computer is called supercomputers, right? Supercomputers, from the name itself we can able to get information that supercomputer means it is the computers which very specific characteristics, right? सिंपल टर्म में हम समझे तो सुपर कंप्यूटर्स कौन यूज़ कर सकता है? इट इज़ यूज्ड बाय एग्जांपल्स इंडिया, राइट? इंडिया इज़ हैविंग वन सुपर कंप्यूटर्स विच इज़ used for the purpose of controlling the defense or artificial intelligence. It may be used by security agencies of our country India, right? So supercomputers are generally very less. It is made, but it is made for a specific purpose. सुपर कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो एक स्पेसिफिक ओकेशंस के लिए बनाया जाता है, जनरली नॉट फॉर ए कमर्शियल पर्पस इट इज़ बीन यूज्ड, राइट? इंडिया मेड इट्स सुपर कंप्यूटर्स with a name called Param, right? Param 8000. It's India's first supercomputer. In which year it was being built? It was built in 1990 by Center for Development of Advanced Computing, right? So supercomputers are generally very expensive. They require again a large space compared to mini computers and mainframe computers. But another important aspect is they are being built for the purpose of a specific occasions, राइट? एग्जाम्पल्स के तौर पे हम ले कि इंडिया का कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए एक कंप्यूटर्स बनाया जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल है, राइट? तो जनरली सुपर कंप्यूटर्स कोई एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो बनाया जाता है, ना कि वो एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए, लोगों के लिए बनाया जाता है. दैट इज़ यूज्ड बाय, राइट, generally the governments of a country, right? Or it is used by suppose example ISRO, Indian Space Research Organization है, right? तो जनरली वो ऐसे कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं. आर्कोलॉजिकल सर्वेज ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो इस कंप्यूटर्स के थ्रू वो परफॉर्म करते हैं, right? So this was the topic which was on different forms of computers. तो हमने क्या क्या पढ़ा? डिजिटल कंप्यूटर्स में मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स. इसमें इन एग्ज़ाम दे आर गोइंग टू आस्क यू
अबाउट शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अगेन different forms of computers. We have hybrid computers. A hybrid computers a computing system that combines both digital and analog components. तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स का मतलब होता है, हाइब्रिड मतलब कि एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों को मिला के और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के जो कंप्यूटर्स बनाता है उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलेंगे। तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनालॉग कंप्यूटर्स की होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हाइब्रिड कंप्यूटर्स में ऐसा होगा कि बोथ द एनालॉग और डिजिटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आपको मिलेगी, राइट। एनालॉग कंप्यूटर्स और एनालॉग कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स हैंडल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। तो ये भी किस यूज में आता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन हाइब्रिड कंप्यूटर? इट इज यूज्ड टू हैंडल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। तो एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, राइट। जैसे हमने आगे देखा कि कोई भी एक कंप्यूटर, जैसे सुपर कंप्यूटर्स है, तो सुपर कंप्यूटर्स को क्यों बनाया जाता है, क्यों, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पीछे? दैट इज दिस कंप्यूटर इज गोइंग टू बेनिफिट इंडिया इन टर्म्स ऑफ सर्टन स्पेसिफिक टास्क। इंडिया को इमरजेंसी नीड है, तो उस टाइम में एक मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ ना करके एक ऐसा कंप्यूटर्स का यूज़ करें जो बहुत ही फास्ट हो, क्योंकि हमको जो भी प्रोजेक्ट पे काम करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कम टाइम में ख़त्म होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो उसके लिए हम किसकी मदद लेंगे? दैट इज़ अवर सुपर कंप्यूटर्स, नन अदर देन दैट, राइट। तो सुपर कंप्यूटर्स या हाइब्रिड कंप्यूटर्स मतलब कि इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और उसमें डिजिटल कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। दोनों को मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर्स बनाया जाता है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग एन हाइब्रिड कंप्यूटर इट इज दैट इट इज एबल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टास्क, राइट। Digital components take care of logical and numerical operations in addition to serving as the controller for the system, right? So digital component generally take care of logical and numerical operations in addition to serving as a controller for the, so digital computers जो है और digital characteristics किस काम में आएगी हाइब्रिड कंप्यूटर्स में कि लॉजिकल आंसर्स फाइंड करने में, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस फाइंड करने में ये आपको बेनिफिशियल्स होगा, राइट। सो दैट वाज द हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये टॉपिक जो है इट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें शॉर्ट नोट पूछेंगे, राइट। एनालॉग कंप्यूटर्स, फिर डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर्स, तीनों की शॉर्ट नोट लिखे। एनालॉग कंप्यूटर्स में कोई टाइप्स नहीं आते। डिजिटल कंप्यूटर्स के टाइप ये है कि उसमें मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स में एक डिजिटल कंप्यूटर्स और एनालॉग कंप्यूटर्स दोनों के उनमें गुण होते हैं, राइट। सो दिस वाज द टॉपिक ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is types of memory, right। memory का मतलब होता है, memory we are talking about, हम अपने आप की बात करें तो हमारे अंदर memories जो है वो कहाँ स्टोर होती है? वो एक हमारे माइंड में स्टोर होती है, राइट। सेम थिंग जो है एक कंप्यूटर है, उसमें जो भी इनपुट एक यूजर्स के द्वारा दिया जाता है तो उसमें कौन सी ऐसे कंपोनेंट की वजह से कंप्यूटर जो है वो
जितनी भी इंफॉर्मेशंस है वो अपने पास रखने में सक्षम रहता है, और जब भी वो इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है कोई भी यूज़र्स को, तो वो इजीली कंप्यूटर्स के थ्रू वो रिट्राइव कर सकता है, ले सकता है, और कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस कंपनीज के उस पर अगर डिपेंड है तो वो ले सकता है, राइट। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी मीन्स मेमोरीज, it means it is, we are talking about storage, we are talking about a specific components which are used for the purpose of storing certain informations, instruction which is given to the computers. Storage capacity of a computer is called its memory. Memory enables the computers to store data, instructions and informations. So memories are very important for a computers, because what is the function of a memory? It is usually useful in storing different types of data, right? Example, if I want to store the data of students of semester 1, the new admissions, अगर मुझे सेम 1 के स्टूडेंट जो भी है उनका मेरे को एक डेटा मेरे पास होना चाहिए कि उनके रोल नंबर, उनका नाम, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, अगर मुझे ये सारी इंफॉर्मेशंस अगर चाहिए तो मैं पहले कंप्यूटर्स में वो डेटा फीड करूँगा। वो डेटा एक बार फीड हो जाएगा, उसके बाद वो कहाँ स्टोर होगा वो डेटा, तो कि कंप्यूटर्स की मेमोरीज में स्टोर होगा वो, राइट। सो मेमोरी जो होती है कंप्यूटर्स की, उसका यूज़ यही है कि वो यूज़फुल इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है, उसके बाद वो जब भी वो इंफॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शन एक यूज़र्स को चाहिए तो उसको टाइमली वो उसको पहुंचाता है। द कलेक्शन एंड preservation of records and their recalling capacity when needed are functions of memory. The data and instructions that are entered into the computer system to the input units are to be stored inside the computer in some storage media, right? Now we will understand that basically memories are divided into two types. One is primary memory and second one is secondary memory. Primary memory is internal memory, secondary memory is called external memory, right? तो एक सिंपल यूज़ है। प्राइमरी मेमोरीज का मतलब होता है कि ये कोई भी कंप्यूटर्स में इनबिल्ट रहती है, राइट। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब वो कंप्यूटर्स में नहीं रहती है मगर हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं, राइट। तो ये मोबाइल में भी अवेलेबल है। जैसे कोई भी आप मोबाइल फ़ोन परचेज करते हो तो उसमें एक स्पेसिफिक स्पेस होती है, राइट। वो स्पेस जैसे सपोज उसमें 256 रैम की स्पेस है, तो 256 रैम की स्पेस इनबिल्ट है, उसको हम इंटरनल मेमोरी बोलेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी में मीन्स अगर हम उसमें कोई डेटा कार्ड या OTG केबल अटैच करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी हो गई, या कोई हार्ड डिस्क अटैच करते हैं तो उसको सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्यूटर्स में थी नहीं, हमने एक्स्ट्रा, हमको ज़रूरत पड़ने पे हमने वो एक्स्ट्रा लगाई, इसके कारण वो सेकेंडरी मेमोरी है, वो इनबिल्ट नहीं है। सो मेमोरीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स एज यू कैन सी, राइट। memories are divided into different types like RAM, that is primary memory. First we will do the primary memory. The primary memory, also known as the internal memory or main memory, it is made up of integrated circuits and is faster compared to secondary memory. तो प्राइमरी मेमोरी जैसे मैंने बोला कि कोई भी कंप्यूटर्स की इनबिल्ट इंटरनल मेमोरीज जो होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरीज बोलते हैं।
उनकी स्पीड जनरली बहुत ज़्यादा होती है सेकेंडरी मेमोरी से, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी हुई होती है, राइट, सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलेंगे, राइट, एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी दैट it is available. It is first one is called RAM, that is called random access memory. Second one is ROM, that is read only memory. Third one is programmable read only memory, that is PROM. Fourth is erasable programmable read only memory, that is EROM. And fifth one is electrically erasable programmable read only memory, that is EROM, right? So what is a random access memory? It is generally we are going to do in detail. Secondary memory is used to store the data permanently, right? Its data is not erased even when the computer is switched off. So ये सबसे बड़ी खासियत है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें आपने एक बार इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी तो उसके बाद उसी पे वो रहेगी। जैसे एग्जांपल, हमने कोई भी पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करी तो वो हम कहीं भी कोई भी कंप्यूटर्स में उसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट, दैट इज़ पॉसिबल। तो डेटा जो भी फीड किया जाता है सेकेंडरी मेमोरीज में वो परमानेंटली स्टोर होता है। वो कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा तो उसको कोई लेना देना नहीं, स्विच ऑफ हो ऑन हो, उसको उसमें जो फीड किया वो ऑलरेडी उसमें दैट इज़ देयर। सम कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एग्जाम्पल। तो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स है फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, DVD ड्राइव है, पेन ड्राइव है, डेटा कार्ड है, राइट, OTG केबल है। ये सब एग्जाम्पल्स है सेकेंडरी मेमोरीज के, राइट। डिफरेंट कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स एंड रिलेशन बिटवीन देम। तो जनरली जो कंप्यूटर्स है वो किस तरह से मेजर करता है, राइट, उनका मेजरमेंट सिस्टम क्या है, तो कि और मेमोरी को कैसे स्टोर करता है, तो वो एक स्पेसिफिक स्पेस में उसको हम डिराइव करेंगे। जैसे 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल एंड 8 बिट्स इट इज कॉल्ड 1 बाइट, राइट, एंड 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 megabyte is equal to 1 gigabyte, and 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte, and 1024 terabyte is equal to 1 petabyte, right? So these are the measurements, right, where we are using MB, KB, GB and TB, right? Just like what is the space in a mobile phone, हम मोबाइल फ़ोन में कैसे करते हैं, कितने GB है, राइट, कितने GB मीन्स कितने गीगाबाइट्स है, राइट, कितने मेगाबाइट्स है, राइट, जनरली। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, इन दैट फर्स्ट वन इज कॉल्ड RAM. RAM stands for random access memory. It is the read-write memory of the computer, because all the input and data are written and read on it by the computer. So RAM जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मेमोरी यूनिट है, क्योंकि RAM जो है उसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलेंगे। मतलब जनरली जो भी डेटा कंप्यूटर्स में फीड होगा इनपुट रिटन फॉर्म में, और उसको हम रीड भी कर सकते हैं, राइट, इट इज़ ओनली रेड एंड राइट इन एन रैंडम वे। सो उसमें रीड और हम राइट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी read from and written on it. RAM stores the data that the user is using while working on the computers, right? तो जो भी आप वर्क कर रहे हो कंप्यूटर्स में उसको आप स्टोर कर सकते हो डेटा को रैम में,
right? This way any record can be accessed directly without going through other records. तो दूसरे records में जाने के बजाय आप एक ही records जो आपको चाहिए वही आप operate कर सकते हो. The program's instructions such as printing a document, opening a browser, etc. are stored in this memory. Right? जनरली हमको कोई भी प्रिंट आउट निकालना है, राइट, कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कहाँ रहती है, रैम में. द डेटा इन द मेमोरी इज इरेज्ड और वाइप्ड आउट इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. तो कंप्यूटर जब बंद होगा तो जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी वो सारी डिलीट हो जाएगी, राइट, अगर सेव नहीं की होगी तो. इट इज़ मेड अप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड इट इज़ ए वोलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी. तो रैम को हम बोलेंगे इट इज़ टेम्पररी memory. The memory which lose their content when power is turned off are called volatile memories.